مفتی سیف صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی جی حضرت کہاں سے بول رہے ہیں حضرت؟ آسام سے. آسام سے بول رہے ہیں حضرت، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ کون ہیں؟ میرا نام اشفاق خان ہے حضرت. جی کہاں کے؟ میں کافی دور سے بول رہا ہوں آپ کے. میں تو آسام کبھی آیا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں. اچھا اچھا. تو کیا حالات ہے جی آسام کے؟ ہے ویسے ہی، اور لاک ڈاؤن ہے. لاک ڈاؤن ہے نا؟ مدرسہ وغیرہ نہیں پڑھا پا رہے ہیں جی؟ نہیں حضرت میں بول رہا ہوں اشفاق خان، میں برہان پور سے بول رہا ہوں. اچھا برہان پور ایم پی. جی جی جی، جانتے ہیں آپ؟ ہاں جانتا ہوں. بمبئی جاتا ہوں تو برہان پور ہو کے ہی نہ جاتا ہے، راستے میں ہی پڑتا ہے. جی 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 جی. کبھی گئے ہیں برہان پور؟ برہان پور ویسے اترا نہیں کبھی، لیکن دیکھا ہوں. اترنا چاہیے، بڑا تاریخی شہر ہے. جی جی تاریخی اور شہر ہے. مطلب تاریخی شہر بھی ہے اور مدینۃ الاولیاء ہے. اچھا اچھا. ہاں، دارالسرور کہلاتا تھا کسی زمانے کے اندر. اچھا اچھا. بہت سارے مدارس، بہت سارے علماء، حفاظ، قراء اور اولیاء. ایک عجیب مطلب ماشاء اللہ بڑا شاندار ماحول ہے وہاں کا. اچھا اچھا ماشاء اللہ. ہاں آمین آمین. بڑا اچھا ماحول ہے اور لوگ بڑے مطلب دیندار ہیں، دین کی باتیں بڑی اچھی سمجھتے ہیں، سنتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے. آمین آمین. تو کبھی آئیے ضرور برہان پور میں، دیکھیے وہاں پر. انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے میزبانی میں انشاءاللہ جاؤں گا. اور تو خیریت سے بچے وغیرہ سب ٹھیک ہے جی؟ جی الحمدللہ سب ٹھیک ہے. حضرت ایک چیز مجھے کلیئر کرنا تھی اصل میں. میرا ذہن یہ میں کتاب پڑھ رہا تھا فتاوی رشیدیہ. اچھا. ہاں تو یہاں پر ایک بات ہے اور وہ یہ کہ تقویت الایمان کے تعلق سے کسی نے سوال کیا ہے. اچھا. کہ جناب مولوی محمد اسماعیل صاحب مرحوم جو ہمراہ سید احمد صاحب علیہ رحمۃ شہید ہوئے تھے، ان کو مردود کہنا بے ایمان کافر کہنا درست ہے نہیں، اور اگر نادرست ہے تو مردود اور بے ایمان کہنے والے کا کیا حکم ہے؟ اور تقویت ایمان جو تصنیف مولانا مرحوم کی ہے اس کا مطالعہ کرنا اور پڑھنا اور پڑھانا اچھا ہے یا برا؟ تو جواب عطا فرمایا انہوں نے کہ مولوی محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم متقی، بدعت کے اکھاڑنے والے اور سنت کے جاری کرنے والے، قرآن و حدیث پر پورا عمل کرنے والے، خلق اللہ کو ہدایت کرنے والے تھے اور تمام عمر اسی حالت میں رہے. آخرکار فی سبیل اللہ جہاد میں کفار کے ہاتھ سے شہید ہوئے. بس جس کا ظاہر حال ایسا ہو ولی اللہ اور شہید ہے. حق تعالیٰ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون. اور کتاب تقویت الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے اور رد شرک و بدعات میں لاجواب ہے. استدلال اس کے بالکل کتاب اللہ اور احادیث سے ہے. اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے. اگر یہ بدعتی یہ بریلوی حضرات جو ہیں تو جن کو مطلب دیوبندی حضرات بدعتی بھی کہتے ہیں ہم، تو بریلوی حضرات کا اعتراض یہ ہے کہ اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام. تو کسی چیز کا رکھنا پڑھنا عمل کرنا عین اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عین اسلام کس کتاب میں لکھا، کہاں پہ لکھا؟ یہ فتاوی رشیدیہ ہے، اس کا پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 71 ہے. اور یہ سوال ہے یہاں پر. فتویٰ رشیدیہ جلد اول صفحہ نمبر 78. کیا 78 نا؟ جی. اچھا اچھا میں دیکھتا ہوں. بھیجوں کیا آپ کے پاس؟ دیکھتا ہوں. جی بھیجوں کیا آپ کے پاس اسکین بھیجنے کے؟ اچھا بھیج سکتے ہیں، میرے پاس آئینے کتاب ہے، میں دیکھ لیتا ہوں. نہیں کتاب ہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو ٹینشن نہیں رہے گا. تو جی جی آپ آرام سے دیکھ لیجیے. اور کھانا وانا کھا لیجیے آپ؟ جی کھا لیا. جی. تو یہ اس عبارت پر نا بڑا شور و غوغا مچا ہوا ہے. اچھا اچھا. ہاں اور مطلب اب یہ بریلوی حضرات کی طرف سے بہت آج کل مطلب ماحول چل رہا ہے قرآن شریف کا رکھنا بھی اہل اسلام نہیں ہے. اچھا اچھا. عین اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب یہ تقویت الایمان کا رکھنا عین اسلام. ہاں مطلب رکھنا کوئی یہ ہے کیا؟ نہ بھی رہے گا. کئی لوگ ایسے ہیں جن کا نہیں ہوگا. اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. تو میں بڑا مطلب کنفیوز تھا. جی اچھا اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں. تھوڑی دیر بعد دیکھ کے میں آپ کو فون لگاؤں گا. دیکھ لیجیے نا آپ کے پاس کتاب ہے تو.
جی کتاب ہے نا آپ کے پاس میں؟ کتاب ہے وہ نکالنا پڑے گا الماری سے. یا میں اسکین کر دیتا ہوں آپ کا حضرت, تھوڑی دیر میں اسکین آ جائے گا, میرا مسئلہ حل ہو جائے گا, کلیئر ہو جائے گا. اچھا اچھا اسکین دوں میں آپ کو؟ دیجیے. ایک منٹ دے رہا ہوں ہے نا. واٹس ایپ نمبر یہی ہے نا آپ کا؟ ہاں یہی ہے اسی میں سب کچھ ہے. جی جی دے رہا ہوں. پہنچایا ہے سر, بس تھوڑی دیر میں آنے والا ہے, شاید آپ کے پاس آ جائے گا. اچھا اچھا. میرا نمبر کہاں سے ملا آپ کو؟ ارے آپ کا نمبر گروپ سے ملا ہمیں. اچھا اچھا. کس گروپ میں؟ آج کل تو کیا ہے, سوشل میڈیا ہے حضرت, نمبر کس کا کہاں کس کے پاس پہنچ جائے پتہ ہی نہیں لگتا. سوشل میڈیا پر اتنا آسان ہو گیا ہے, مطلب بچوں پرانے لوگوں کا نمبر ڈھونڈنا مشکل نہیں ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں حافظ غفران صاحب, میں آج کل ان کا نمبر ڈھونڈ رہا ہوں لیکن وہ مل ہی نہیں پا رہا ہے. تو سوشل میڈیا پر میں نے کل ڈالا تھا تو کچھ لوگوں نے, وہ ادھر کے ہی آسام وغیرہ کے, وہ تو آپ کا نمبر دیا لوگوں نے. حضرت سے پوچھیے شاید وہ بتا سکے. آیا حضرت, دیکھا کتاب نکال رہا ہوں, کتاب نکالا ہوں ابھی دیکھتا ہوں. اسکین میں نے بھیج دیا آپ کے پاس, شاید اچھا اچھا پہنچ گیا ہوگا آپ کے پاس. بھیج دیا آپ کے پاس, آ گیا. آپ اس کو آن کریں گے نا, سامنے آ جائے گا. جی دیکھا سر, دیکھ رہا ہوں کتاب. جی جی. نہیں آپ کے پاس اسکین ہی آ گیا نا سر, ضرورت ہی نہیں کتاب کی. ہاں پھر بھی میں کتاب کر لیا, نکال لیا, پڑھ رہا ہوں. اب پڑھ کے سنایا ہے, وہ نکلا ہے. جی جی نکلا. جی جی ملا ہے. پڑھیں جی حضرت بتائیں. جی جی جی. اور مودی اگر کہیں اس سے رکھنے کو جو برا کہتا ہے وہ فاسق اور بدعتی ہے. اگر اپنے جہل سے کوئی اس کتاب کی خوبی نہ سمجھے تو اس کا قصور فہم ہے. کتاب اور مؤلف کتاب کی کیا تفسیر. بڑے بڑے عالم اہل حق اس کو پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کسی گمراہ نے اس کو برا کہا تو وہ خود اور پڑھ رہے ہیں نا حضرت آپ؟ نہیں وہی پڑھا, لیکن وہی پڑھا تھوڑا آگے تک. اچھا اچھا پڑھ دیا. وہ تو اس میں لکھا ہے اس کے بالکل کتاب اللہ اور احادیث سے ہے. اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے اور موجود اجر کا ہے. اس کے رکھنے کو جو برا کہتا ہے وہ فاسق اور بدعتی ہے. اگر اپنے جہل سے کوئی اس کتاب کی خوبی نہ سمجھے تو اس کا قصور فہم ہے. جی ہاں بالکل ہے, صحیح ہے, اسی طرح لکھا ہے جیسا آپ نے پڑھا ویسے ہی ہے. جی جی. اچھا تو کیا ہوا اس میں؟ ان کا کہنا یہ ہے بریلویوں کا کہ یہ عین اسلام رکھنا عین اسلام. اچھا تو رکھنا عین اسلام کیسے ہوگا؟ اگر اس کے خلاف کام کرے گا تو مطلب پھر تو اسلام والا ہی نہیں ہوگا. عین اسلام سے مراد تو یہاں کوئی فرض واجب تو نہیں ہے, اسلام کے مطابق موافق ہے. عین اسلام کا معنی کیا ہوگا حضرت؟
वही तो मैं कहता हूँ कि आईने इस्लाम से यही मुराद लिया होगा कि इस्लाम के मुआफिक है, ये तो फर्ज और वाजिब कुछ नहीं कहा। मतलब ये है, यही कह रहे हैं ना वो कि इसका रखना और पढ़ना इस्लाम के मुवाफिक है। हाँ, इस्लाम के मुवाफिक है, वही समझाना चाहते हैं। जी जी। और इसका ना रखना इस्लाम के खिलाफ है? नहीं, ना रखना इस्लाम के खिलाफ नहीं। तो फिर कैसे ये किया है? यहाँ तो बात यही आएगी ना, जब इसकी जिद में आएंगे तो जब इसकी जिद में बात करेंगे तो यही तो बरेलवियों का इतराज है। उनका कहना यही है कि इसका रखना और पढ़ना इस्लाम के मुवाफिक, जैसे आपने फरमाया इस्लाम है, इस्लाम के मुवाफिक है। तो अगर ये इस्लाम के मुवाफिक है तो अब इसके खिलाफ अगर कोई अमल करेगा तो जाहिर है वो इस्लाम का मुखालिफ हुआ, तो इसका ना रखना इस्लाम के खिलाफ होगा। इसका मुखालिफ कैसे होगा? मुखालिफ दाढ़ी का रखना, दाढ़ी का रखना सुन्नत के मुवाफिक है। हाँ, दाढ़ी का कटाना सुन्नत के खिलाफ है कि नहीं है? हाँ, खिलाफ है। तो इस किताब में जो बातें लिखे हैं वो कुरान हदीस के मुवाफिक है। नहीं, यहाँ तो कहेगा कोई तो इस्लाम का खिलाफ ही होगा। नहीं हजरत, यहाँ जुमला ये कहा कि उसका रखना और पढ़ना ऐन इस्लाम है। तो यहाँ बरेलवियों का इतराज ये है कि तक़वियतुल ईमान किताब तो बहुत सारे हजारों देवबंदी ऐसे होंगे, लाखों देवबंदी ऐसे होंगे जिनके घर में नहीं होगी, तो अब वो तो मतलब रखे नहीं है उन्होंने। और पढ़ने वाले तो हर देवबंदी पढ़ने वाला भी नहीं है, तो पढ़े भी नहीं है उन्होंने। तो अब ऐसे सब लोग तो इस्लाम के खिलाफ हुए क्योंकि मुवाफिक अमल नहीं किया, तो मुखालिफ आईने इस्लाम के खिलाफ से मतलब ये मुखालफत नहीं है। फिर क्या क्या है? तक़वियतुल ईमान किताब में क्या? हाँ, तक़वियतुल ईमान के बारे में कहा ना? जी जी। ये किताब ये जो लिखा है तक़वियतुल ईमान के बारे में है ना? जी जी जी। तो ये तक़वियतुल ईमान ने जो बातें लिखे हैं वो आईने इस्लाम के मुवाफिक है। ये कुरान मुक़द्दस में जो बातें हैं वो सब इस्लाम के मुवाफिक है या मुखालिफ है? किसमें? कुरान मुक़द्दस में। कुरान में इस्लाम के मुखालिफ की बात ही नहीं आती है। जी। तो हज़रत मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर कोई बंदा ये कहे कि कुरान पाक का घर में रखना, उसका पढ़ना और उस पर अमल करना आईन इस्लाम है, तो अगर जो नहीं रखेगा, नहीं रखा किसी ने, तो ऐन का उलट क्या होना है? मतलब मवाफिक का मुखालिफ उलट होगा। तो नहीं रखा, नहीं पढ़ा, तो हुक्म हुआ कि कुरान का ना रखना माज़अल्लाह इस्लाम का मुखालिफ है। तक़वियतुल ईमान का रखना, यहाँ साफ कहा कि उसका रखना और पढ़ना और अमल करना ऐन इस्लाम है। तो जब वो ऐन इस्लाम है तो उसका ना रखना तो मुखालिफ इस्लाम हुआ। और फिर ये बात भी उनकी है जिनका नाम रशीद अहमद गंगोही है, कोई मामूली बात नहीं है। बताइए आप, मैं आपको बताता हूँ, बरेलवियों की तरफ से इतने एतराज़ात आ रहे हैं हजरत, समझ नहीं पा रहे हैं, क्या बताएं? मैं समझ गया, पूरा समझ गया। उनका कहना यह है कि अगर रशीद अहमद गंगोही साहब ये बात बोले हैं तो उनकी बात की मुखालिफत कोई नहीं कर सकता। अगर किसी ने किया तो माशाअल्लाह वो फिर मुसलमान नहीं रहेगा। और ये भी हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बोले तज़किरतुर रशीद नामी एक किताब है, मौलाना आशिक इलाही मेरठी साहब ने लिखी है, उसके सफ़ा नंबर 254 पर रशीद अहमद गंगोही साहब कहते सुन लो, हक वही है जो रशीद अहमद की ज़बान से निकलता है। तो हक तो रशीद अहमद की ज़बान से निकला, अब अगर उसके खिलाफ कोई अमल करा तो हक के खिलाफ अमल करने वाला हुआ। तो अब ये तक़वियतुल ईमान का रखना, पढ़ना और उस पर अमल करना ऐन इस्लाम है माज़अल्लाह। तो अब जिस देवबंदी के घर में तक़वियतुल ईमान ना हुई, जिस मुसलमान के घर में तक़वियतुल ईमान ना हुई, तो माज़अल्लाह फिर तो वो मुखालिफ इस्लाम हुआ। नहीं, वो मतलब नहीं। ये तक़वियतुल ईमान किताब में जो कुछ बातें लिखे हैं ये इस्लाम के मुआफिक है। लेकिन बात यह है कि इस किताब के मुखालिफत किया है बरेलवियों ने, बहुत मुखालिफत किया है और गलत प्रोपेगेंडा किया है बहुत इसमें, और ये बातों के साथ काट करके बहुत कुछ कहा है।
क्या गलत प्रोपेगेंडा हजरत मतलब बताएं मुझे। वो कितना बताऊं, बहुत सारे है। कोई इबारत कहीं से लिए, 3 जगह से इबारत लिए, वो इबारत भी तरतीब से नहीं। अच्छा, आखिर की इबारत पहले लाए हैं, पहले के इबारत 20 में, 20 वाला इबारत आखिर में, ऐसे तरतीब के उलट पलट करके, और वो इबारत एक जगह की नहीं, 3 जगह। हजरत बात काटूं आपकी, मतलब आपका कहने का मतलब ये है, मैं जो समझाऊं जी, वो आपका कहने का मतलब ये है कि तक़वियतुल ईमान के जो मसाइल है और जो उसमें लिखा हुआ है वो कुरान और हदीस के मुताबिक है। जी जी, यही कहना चाह रहे हैं आप? जी जी। तो कुरान और हदीस के मुताबिक जो किताब हो, उस किताब का रहना और पढ़ना अहले इस्लाम में, यही कहना चाह रहे हैं, मतलब उन्होंने ये कहा है। नहीं, सुनिए, मैं बोलता हूँ। तो ये किताब की मुखालिफत किए हैं और गलत बातें भी इसके बारे में बेरलवियों ने किया है। और इबारत के छांट करके बल्कि इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को काफिर भी किया है, कहा बेरलवियों ने। तो वो आलिम ने कहा सर, हाँ, काफिर किसने कहा? बेरलवियों ने कहा इस्माइल शहीद को काफिर कहा। अरे हजरत, हम तो मतलब देवबंदियों को देखते हैं, वो देवबंदी हजरात को देखते हैं, तो बरेलवी तो इस बात पर वो बहस करते हैं कि आला हजरत ने काफिर नहीं कहा इस्माइल दहलवी को। बरेलवी हजरात की दो बहस होती है, मतलब देवबंदी हजरात की बरेलवियों से बहस होती है कि आला हजरत ने इस्माइल दहलवी को काफिर क्यों नहीं कहा। काफिर नहीं कहा? नहीं, आला हजरत का फतवा नहीं है कफ्र का। अच्छा, किस आलिम ने कहा है मतलब कि मौलाना अहमद रजा ने काफिर कहा? कि मौलाना अहमद रजा साहब ने तो कुफ्र का फतवा नहीं दिया, और न मैंने अभी तक किसी बरेलवी का पढ़ा है कि किसी बरेलवी ने इस्माइल दहलवी को काफिर कहा हो। तो तमाम बेरलवी इस्माइल शहीद को काफिर कहते हैं। तो बताइए ना किसने फतवा दिया? भाई सबूत देना पड़ेगा ना। हम अगर किसी को बोलेंगे कि तमाम बरेलवी ऐसा कहते हैं, तो हम फिर मतलब जो है तो सबूत देना पड़ेगा ना, कौन से मौलवी ने कुफ्र का फतवा दिया। तो क्या बेरलवी मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को मुसलमान मानते हैं क्या? नहीं, काफिर नहीं, वो मुसलमान तो नहीं मानते हैं, काफिर नहीं मानते। बाकी मुसलमान नहीं मानते हैं, आप खुद कह रहे हैं, तो क्या हुआ? काफिर ही तो कहा। नहीं, काफिर किसने कहा, वही तो पूछ रहा हूँ। मुसलमान मानते हैं बेरलवी लोग इस्माइल शहीद को, खामोश रहते हैं उनके मामले में। नहीं, खामोश नहीं रहते। हाँ, खामोश नहीं रहते। खामोश है हजरत। नहीं, मानिए तो आप, वरना आप बताइए फतवा कहाँ है, किसका फतवा है, मैं मेरे पास आ जाए। मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैहि ये तक़वियतुल ईमान के बारे में उनको काफिर कहा है। ये तमाम बेदात बात लिखे है इन्होंने, ऐसा कहता है। किसने कहा? बेरलवी, तमाम बेरलवी, अभी के 2 बेरलवी है सब। कौन से बेरलवी बताइए? सब बेरलवी। नहीं, कोई नहीं कहता काफिर। किसने कहा? कौन से मौलाना? चलो नाम बताइए, इबारत दीजिए। तो मेरे सामने नहीं है, देखना पड़ेगा। हमेशा देखते हैं हम के इस्माइल शहीद को काफिर मानते हैं, मुसलमान नहीं मानते हैं। बेरलवी इस्माइल शहीद को मुसलमान नहीं मानते हैं। कोई भी बरेलवी आलिम ने, मौलाना अहमद रजा के बारे में बता रहा हूँ मैं, उनकी किताब पढ़ी मैंने। अच्छा, अल कौकबतुस सहाबिया और सुयूफुल हिंदिया, और एक किताब है सुबहान सुब्बू अनायब के मकबूब। ये तीनों किताबों के अंदर मौलाना इस्माइल दहलवी को आला हज़रत ने कुफ्र का फतवा नहीं लगाया उन पर। और आप ही कहते हैं मुसलमान नहीं मानते हैं। तमीज़ ईमान में तो साफ कहा है उन्होंने कि हाशा लिल्लाह, मैं हरियन उनको काफिर नहीं कहता। वो तो मौलाना अहमद रजा बेरलवी ने, अशरफ अली थानवी साहब, रशीद अहमद गंगोही, खलील अहमद अम्बिदवी, इनको तो कहा, कासिम नानतवी, किसी को भी काफिर नहीं कहा। नहीं, इनको कहा ना काफिर। बाद में रुजू किया है। नहीं, कहीं रुजू नहीं किया। बताइए कहाँ से रुजू किया है, फतवा मौजूद है। चलिए बताइए फतवा कहाँ पर है? तो निकालना पड़ेगा, अभी तो मेरे सामने मौजूद नहीं, निकालना पड़ेगा। किस किताब में? किताब बता दीजिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। निकालना पड़ेगा, आपको दे दूंगा मैं किताब।
हाँ किताब दे दूंगा मैं इसका। अच्छा, नाम नहीं मालूम है किताब का? हाँ चलिए, अगर मैं ये पूछ रहा था फिर अहले इस्लाम ये किताब मतलब आपके घर में है कि नहीं? हाँ मेरे पास तो है। और आपके साथ में जितने देवबंदी हजरात रहते हैं उन सबके यहाँ किताब है कि नहीं? मेरे पास है। वो आईने इस्लाम इसलिए कहा कि बेरलवी इसके मुखालिफत करते हैं और इस किताब को गलत कहते हैं। चलिए, तो बेरलवी जिस चीज की मुखालिफत करेंगे वो अहले इस्लाम हो जाएगा। हाँ, बेरलवी मुखालिफत करेंगे वो अहले इस्लाम हो जाएगा। गैर थे ही कहते हैं, इसलिए उसके मुकाबला में कहा कि ये किताब आईने इस्लाम के मुवाफिक है। उनका मतलब यह है कि नहीं, मुवाफिक नहीं हजरत, उन्होंने कहा अहले इस्लाम, इसका रखना भी अहले इस्लाम है, इसका पढ़ना भी अहले इस्लाम है। तो अहले इस्लाम की मुखालिफत जैसे होगी तो वो इस्लाम की मुखालिफत होगी। अच्छा जी हाँ, माशाल्लाह से मुफ्ती है। तब ये जवाब देना मुश्किल है किसी के लिए भी, परेशानी यहीं पर आकर खड़ी होती है कि बात करते हैं हम अहले इस्लाम की, वो कह रहे हैं साहब, अब आप कह रहे नहीं, उसका मतलब ये नहीं है। वहां तो साफ लिखा हुआ है, मतलब क्या लिखा है? हाँ, मैंने कहा ना आपको, सुन्नत दाढ़ी रखना क्या है? अहले सुन्नत है। और दाढ़ी कटाना क्या है? मुखालिफ सुन्नत है। नमाज पढ़ना क्या है? अहले फर्ज है। और नमाज छोड़ना क्या है? फर्ज की मुखालिफत है। वही आईने इस्लाम से मुराद आईने इस्लाम के मुवाफिक है, यही मुराद है। और ना ये मुराद नहीं कहते हैं, ये मुराद उन्होंने कहा लिखी, लिखे या ना लिखे, पूरा देवबंदी इसको फर्ज वाजिब नहीं मानते हैं। मैं कह रहा हूँ आप देवबंदियों की बात करिए, वो बात कहा ही है उनके मुकाबला में, बेरलवी के मुकाबला में कहा, इसलिए वैसा बोलना पड़ा। जब मुनाजरा करते हैं तो मुनाजरा के अंदाज अलग होता है। अच्छा, बरेलवी हजरात जो है तो वो आपके नजदीक मोमिन है, काफिर है? नहीं, मैं किसी की तकफीर क्यों करूं? क्या मुसलमान मानते हैं ना आप उनको? मुसलमान भी कहने की क्या जरूरत है? मुझे जरूरत नहीं, वो मुसलमान हो काफिर हो जो भी है अल्लाह के पास है, अल्लाह जाने। हजरत आपसे कोई बंदा, आप मुफ्ती हैं, कोई फतवा लेने आएगा, पूछेगा कि हिंदू मुसलमान है कि काफिर है, तो आप यही कहेंगे मुझे मुसलमान कहने की क्या जरूरत है, अल्लाह जाने उसका नहीं। आप भैया ये अजीब बात करते हैं। हिंदू के बारे में पूछेगा कि हिंदू मुसलमान है या काफिर है, उसके बारे में कहने में क्या तरद्दुद है मुझे? नहीं भाई, मैं आप झगड़ा की लाइन में बात कर रहे हैं, बात नहीं कहा कब उस तरह बात कहा है, वही मैं कहता हूँ। मतलब ये होता है तो पता ये लगा, बरेलवी जिस चीज की मुखालिफत करेंगे, हेलो, हाँ जी, तो वो अहले इस्लाम हो जाएगी देवबंदियों के नजदीक? नहीं, बात वो मतलब वो नहीं। ये जो तक़वियतुल ईमान में बराबर सब कुरान और हदीस के मुवाफिक बात है, लेकिन इनके मुखालिफत करते हैं बेरलवी लोग। कुरान और हदीस के मुवाफिक हैं? हाँ, कुरान और हदीस के मुवाफिक है। लेकिन सुनिए हजरत, मैं आपको बताता हूँ, हाँ, ये आप कह रहे हैं कुरान और हदीस के मुवाफिक है, इस बात को लीजिएगा। और आप ही के मौलाना है मौलवी अशरफ अली थानवी साहब, हाँ, वो किताब अरवाह सलासा यानी हिकायात औलिया, इदारा तालीफात अशरफिया में छपी हुई है, उसका सफ़ा नंबर 80 है, हिकायत नंबर 58-59 है, हिकायत नंबर 59 है, 59। सुनिए आप गौर से। कहते हैं खान साहब ने फरमाया कि मौलवी इस्माइल साहब ने तक़वियतुल ईमान अव्वल अरबी में लिखी थी, चुनांचे इसका एक नुस्खा मेरे पास और एक नुस्खा मौलाना गंगोही के पास और एक नुस्खा मौलवी नसरुल्लाह खां फूरजवी के कुतुब खाने में भी था। इसके बाद मौलाना ने उसको उर्दू में लिखा और लिखने के बाद अपने खास लोगों को जमा किया, जिनमें सैयद साहब, मौलवी अब्दुल हई साहब, शाह इसहाक साहब, मौलाना मोहम्मद याकूब साहब, मौलवी फरीदुद्दीन साहब मुरादाबादी, मोमिन खां, अब्दुल्ला खां अलवी, उस्ताद इमाम बख्श सहाय व मौलाना ममलूक अली साहब भी थे। और उनके सामने तक़वियतुल ईमान पेश की। किससे पेश की? इस्माइल दहलवी साहब ने जी। और फरमाया कि मैंने किताब लिखी है, और फिर कहते हैं और मैं जानता हूँ कि इसमें बाज़ जगह जरा तेज अल्फाज भी आ गए हैं और बाज़ जगह तशद्दुद भी हो गया है। मसलन इन उमूर को जो शिरके खफी थे, शिरके जली लिख दिया गया है। इन उमूर को जो शिरके खफी थे, शिरके जली लिख दिया गया है। तो हजरत आप कह रहे हैं कुरान और हदीस के मुताबिक है,
मौलवी इस्माइल साहब कह रहे हैं मैंने किताब लिखी है, इसमें तशद्दुद आ गया है, और इन उमूर को जो शिरके खफी थे, कुरान और हदीस में शिरके खफी थे, उनको शिरके जली लिख दिया गया है। तो शिरक तो है अलबत्ता, तो शिरके खफी को शिरके जली लिख देना, ये किसने अथॉरिटी दी थी मौलाना वो इस्माइल साहब को? शिरक तो है। तो शिरके खफी को शिरके जली लिख देना मतलब अल्लाह उसका रसूल शिरके खफी कहे और ये शिरके जली लिख दे, और फिर वो किताब कुरान और हदीस के मुताबिक वो ऐन इस्लाम हो जाए? हो सकता है ऐसा? हेलो, किताब अलबत्ता जो है क्या है तक़वियतुल ईमान, ये किताब तो सही है। वो तो खुद कह रहे कि गलत लिखा है मैंने। अभी और सुनिए, वो तो खुद कह रहे कि मैंने गलत लिखा है। वो कह रहे हैं हदीस मैंने शिरके जली लिख दिया, तो गलत लिखा उन्होंने। नहीं, गलत नहीं लिखा। अरे वो तो कह रहे हैं ये बात, वो खुद कह रहे हैं कि शिरके खफी थे, मैंने शिरके जली लिख दिया। अच्छा। तो शिरके खफी जब वो था, जब अल्लाह ने शिरके खफी कहा, रसूलुल्लाह ने शिरके खफी कहा, तो इनके मतलब इनके ऊपर वही नाजिल हुई थी जो इन्होंने शिरके जली लिख दिया। वो क्या नोजिल है कि वही नाजिल होगा? तो माज़अल्लाह फिर कैसे शिरके जली लिख दिया? जो हुक्म अल्लाह रसूल ने दिया उससे आगे कैसे बढ़ेंगे? और सुनिए, वो एक बात और भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इन वजूह से मुझे अंदेशा है कि इसकी इताअत होगी ना तो उससे सोरिश होगी, और सोरिश जरूर होगी, सोरिश जरूर होगी, और हुई सोरिश जरूर होगी। फिर कहते हैं मगर तवक्को है कि लड़ भिड़कर खुद ही ठीक हो जाएंगे। तो 150 साल से मगर तवक्को है कि लड़ भिड़कर खुद ही ठीक हो जाएंगे, मतलब लड़ाने के लिए लिखी गई किताब। आप कह रहे कुरान और हदीस के मुताबिक है। अब मौलवी इस्माइल साहब सच्चे हैं या आप सच्चे हैं या रशीद अहमद गंगोई साहब सच्चे हैं? लिखने वाला तो कह रहा है मैंने उन उमूर को जो शिरके खफी थे शिरके जली लिख दिया। लिखने वाला तो कह रहा है इससे सोरिश होगी, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, फसाद होगा। लिखने वाला तो कह रहा है कि मगर मुझे उम्मीद है कि लड़ भिड़कर खुद ही ठीक हो जाएंगे। लिखने वाला है सारी बातें कह रहा है, फिर भी रशीद अहमद गंगोई साहब कह रहे कि ऐन इस्लाम है, रखना पड़ना है इसका। तो मतलब जो लड़ाई करने के लिए किताब लिखी गई उस किताब को रखना ऐन इस्लाम हो गया माज़अल्लाह। नहीं समझ गए आप खुद मकतब फिक्र बरेलवियत के। तो मैंने कब इनकार किया कि मैं मकतब फिक्र बरेलवियत से नहीं हूँ? मैंने तो बोला ही नहीं ये बात। नहीं ठीक ही है, इसलिए बात आप खींचतान करके बरेलवियत की तरफ ले जा रहे हैं। खींचतान के लिए बात हक की है हजरत, हक बात हक होता है, बात हक की नहीं है। हक की है। मुझे बताएं जो उमूर शिरके जली थे उनको शिरके खफी थे उनको शिरके जली कैसे लिख दिया? इनके मतलब बाप का राज था? बाप का राज अहमद रजा खान का भी नहीं था, किसी का उन्होंने नहीं। कुरान और जो हदीस के अल्लाह रसूल का मुखालिफत हुक्म है, जो अल्लाह रसूल का हुक्म है उसके खिलाफ कोई भी अमल करे ये किसी का नहीं हो सकता। तो शिरके उन उमूर को जो शिरके खफी थे उनको शिरके जली क्यों लिखा मौलवी इस्माइल साहब ने? हजरत गलत बात है। हजरत कितनी अच्छी बात कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ उन उमूर को जो शिरके खफी थे शिरके जली क्यों लिख दिया गया? मौलवी इस्माइल साहब ने क्यों लिखा? वो कहाँ लिखा मैं देखा नहीं, वो नजर से नहीं देता हूँ मैं आपको, कभी स्केल लगा देंगे, हम दे देंगे आपके पास में। स्केल में भी क्या है? स्केल में भी बरेलवियत लोगों के जो स्केल है तो किताब पढ़ लीजिए, हमने किताब दे दिया है। 1 लाख रुपए इनाम अगर हमने गलत लिखा हो तो, हमने गलत पढ़ा हो तो लेंगे आप इनाम? मुझे इनाम नहीं हजरत असल में क्या होता है, यही परेशानी होती है, हम अपने लोगों की हिमायत के अंदर हक को भी फरामोश कर देते हैं। अरे भाई जब हमने क्या कहा, बात तो बरेलवियत में भी है। नहीं कहा तो अगर बरेलवियत में तो आप उसके हिसाब से काम करेंगे। बरेलवी है आप, मतलब एक आदमी अगर चोरी करता हो और आप भी चोरी करेंगे, जब वो आपको कहेगा कि आप चोरी करते हैं तो आप कहेंगे तेरे अंदर भी तो यही बात है, ऐसा बोलेंगे आप? आप खुद सोचे ना, जो किताब इसलिए लिखी गई कि उनको जो अल्लाह रसूल ने शिरके खफी लिखे थे वो शिरके जली से लिख लिया, और वो किताब से कहता है मुझे मालूम है कि इसकी इशाअत से चोरी होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, फसाद होगा, और फिर कहता है लड़ भिड़कर खुद ही ठीक हो जाएंगे। और वही किताब को मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब कहते हैं कि उसका रखना, पढ़ना और अमल करना ऐन इस्लाम है।
اور آپ کہتے بالکل صحیح بات بولی انہوں نے. تو بتائیں اسماعیل جھوٹا ہے کہ مولوی صاحب جھوٹے ہیں کیا جھوٹے ہیں؟ اشفاق بھائی دیکھیے اسماعیل توحید رحمۃ اللہ علیہ نے تو غیاث الایمان لکھا اور اس کتاب کی تائید فرما رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی جیسے بڑے بڑے بزرگ اور ہزاروں لاکھوں بزرگ اس کتاب کی کیا ہے حضرات ایک منٹ. ایسے نہیں، اگر یہ بات بولیں گے آپ کے بڑے بڑے لوگ یہ مان رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ وہ مان رہے ہیں، دنیا کے عظیم ترین لوگ مان رہے ہیں، دماغ والے لوگ مان رہے ہیں، تو میں آپ سے کہوں گا کہ پوری دنیا کے اندر بے شمار کفار موجود ہے ماشاء اللہ، وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش کر رہے ہیں، ان کے پاس دماغ نہیں ہے. آپ کفار سے بہت کیجیے ان باتوں کا، کفار سے بہت کیجیے. وہی کہہ رہا ہوں میں، تو یہ مثال دے رہا ہوں، میں ان سے بحث نہیں کر رہا ہوں. یہ تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ امور جو شرک خفی بڑے بڑے علماء کی بات کو آپ کفار کے ساتھ کیوں لگائے ہیں؟ کفار کے ساتھ لے جا رہے ہیں کیونکہ کفار سے بھی زیادہ نیچے جائیں گے. وہ کون؟ یہ والے بڑے بڑے جو آپ کے سڑے سڑے علماء ہیں. یہ جو آدمی قرآن و حدیث کے حکم کے خلاف عمل کرے، اللہ رسول جس کو شرک خفی کہے اس کو شرک جلی لکھ دے اور اس کے بعد میں اس کو پھیلائے، مطلب ایک نیا دین لے کر کے آئے، اور پھر اس کے بعد میں ایک دوسرا ملا جس کو آپ بڑا عالم کہہ رہے ہو وہ کہے کہ اس کا رکھنا پڑھنا اور اس پر عمل کرنا اہل اسلام ہے، اور وہ کتاب وہ لکھنے والا